चलो, सो लेट्स गो फॉर ऑपरेटर्स एंड मैट्रिसेस। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस के बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी अपने आप में ही एक पूरी कहानी है और एक अलग से पूरी टॉपिक है वो, है ना। बट हमें जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करना है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेनली वी हैव टू गो फॉर स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी और स्केलर प्रोडक्ट को आप कैसे समझ सकते हो वो देखना है। एनीवे, next very important tools of mathematics in quantum mechanics is matrices and operators. ठीक है, so in general you will see that any physical quantity, we have lot of physical quantity in uh, our measurement. So in a quantum mechanics, that physical quantities will associate it, or we will represent that physical quantity in representation of matrices in general. ठीक है, so obviously when you will represent in term of matrices you need some basis and something else, है ना। basis चाहिए, उस ऑपरेटर का उस पर्टिकुलर वेक्टर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, ये सारा समझना होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। so what is operators? So in general in quantum mechanics, operators are shown by capital Roman letter and some you can put on hat this thing. Okay, so A operator, B operator, C operator, something like this. Okay, and if you have any operator A, it will operate on kit from the left side. ये जो लाइन है इसी की तरफ से आप ऑपरेट करोगे, you will get some new kit. This is the basic feature of operators. So in general these operators, if this is column vector, then this operator can be represented as what? n cross n matrices. ठीक है, so इसको आप n cross n matrices के थ्रू दिखा सकते हो। if you are writing something like this, suppose phi है and if you are writing something like this is what? It is meaningless. आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। always you will operate operator from your left. This is typically meaningless. Okay, and operators are some mathematical rules, mainly some mathematical rules है। हो सकता है वो डिफरेंशिएशन हो सकता है डबल डिफरेंशिएशन हो सकता है कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इट मे बी। ओके, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। यू कैन मेक योर ओन ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू कैन सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल रूल्स जिसको कि आपको फॉलो करना है। क्लियर है ये? सो दिस इज ऑपरेटर्स एंड ऑब्वियसली if operator will operate on kit, you will always get a kit. If operator will operate on bra, you will always get a bra. ऐसा नहीं होगा कि kit को ऑपरेट किए तो bra मिल गया आपको, it is not possible. Okay, suppose B operator is operating on this bra, you will get some, let's say chi bra, there is not any problem. ठीक है, so these are the operators. So there are some properties of operators जो कि basically matrix के properties होंगे। ठीक है, so what are these property? A plus B suppose is going to operate on phi some kit, उसे आप bra के लिए भी लिख सकते हो, so there is not any problem because kit will operate on kit, bra will go to bra. That will equivalent to what? A phi plus B phi. So why it is linear operator? कैसा operator है ये? Linear operator. They are operating linearly on a some kit, some function. Okay, clear है? In general you can write a plus b phi, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो b plus a phi भी लिख सकते हो। ओके, and similarly you can operate a on phi plus chi, इसे ऑपरेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको? you will have a phi plus a chi.
ओके, a phi plus a का a, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लीनियरली आप ऑपरेट करते हो, है ना। इन जनरल a b phi इज नॉट इक्वल टू b a phi। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इट इज इन जनरल। इन जनरल a b phi इज इक्वल टू नॉट b a phi, ठीक है। सो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम डिफाइनिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफाइन कर रहा हूं कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर। व्हाट इज दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर? दैट विल बी d upon dx। मींस if I am going to apply this differential operator on some function, let's say some function psi x, then d upon dx will operate on psi x. Okay, agreed? And how operator will operate? Suppose you have a b c phi, suppose 3 operators है यहाँ पर। So how operator will operate? Operator will operate first, जो सबसे nearest रहेगा वो पहले operate करेगा, and it will give you some nuket maybe, and then b will operate to this one, and then a will operate to bc phi। Agreed? So जो nearest रहेगा वो सबसे पहले ऑपरेट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे कि पहले ए को ऑपरेट कर दो, फिर बी को ऑपरेट कर दो, फिर आप सी को ऑपरेट करो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, नाउ लेट्स, सो समटाइम वी कैन राइट ऑपरेटर्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म। किसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा वो आप देख सकते हो, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर वन प्रॉब्लम, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। क्लियर है यहां तक? Suppose I have a operator A is defined as dx plus x, कुछ ऐसा ऑपरेटर है, ये a ऑपरेटर है, ठीक है। सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर ऑपरेटर? व्हाट विल बी a स्क्वायर ऑपरेटर? ये क्या होगा ये हमें देखना है। सो हाउ यू विल फाइंड दिस थिंग? सो ऑब्वियसली dx plus x स्क्वायर, इसे देखना है इक्विवेलेंट क्या होगा। देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऑपरेट ए स्क्वायर और कोई फंक्शन को ऑपरेट करोगे इसके ऊपर, dx। एंड व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ dx? dx will operate on any function, it will just go to differentiate it, and x will operate on this thing that will just give you psi x, x psi x, ठीक है। so this is a representation of operator and this is the value what you are getting, ठीक है। now what will happen, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर dx प्लस x होल स्क्वायर साई x। ओके, यहाँ पर कुछ अल्फा बीटा भी हो सकता है अगर डायमेंशन को आप मैच करना चाहो तो, बट आई एम जस्ट गोइंग फॉर जस्ट अ मैथमेटिकल थिंग। तो इसे आप कैसे लिखोगे? क्या इसे ऐसे लिख लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? नो, बिकॉज ए बी एंड बी ए आर नॉट सेम। So what you have to do? You have to just go for dx plus x into dx plus x psi x, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा? You will get dx plus x and dx will operate on dx psi x plus x psi x, और x इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा? x psi x, ऐसा होगा, ठीक है। नाउ अगेन, अब ये क्या है? दिस वन इज सम फंक्शन, dx psi x is some function,
क्योंकि दिस इज dx अपॉन psi x एंड x psi x इज आल्सो सम फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसे आप लिख सकते हो सम फंक्शन, वो फंक्शन क्या है d psi अपॉन dx, और ये फंक्शन क्या है x psi x। सो दिस इज न्यू फंक्शन। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक अ न्यू फंक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, dx प्लस x, इसको फिर से ऑपरेट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, dx विल ऑपरेट ऑन दिस वन। सो क्या हो जाएगा dx d psi upon dx plus this dx will operate on this one, क्या हो जाएगा dx x psi x। Are you getting my point? And then x will operate on this one, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। So that will is x d psi upon dx। Now x will operate on this one, so क्या हो जाएगा x will operate on x psi x। Are you getting this thing? So ये जब ओपन करोगे so dx will operate on this thing is nothing but d square psi upon dx square। Okay, now dx will operate on this one, so what you will get, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। So you have d upon dx x psi x। Agreed? And now x will operate on this one, this will give you small x and this same function, so that is x d psi upon dx, and x will operate on this one is nothing but x square psi x। Now you have to do this thing again, differentiation। So what you have d square psi dx square, ये क्या आ जाएगा x d psi upon dx plus psi plus x d psi upon dx x square psi x। This thing is 2 times, so d square psi dx square 2x d psi upon dx plus x square psi x plus psi। Agreed? क्लियर है ये? सो ये पूरी की पूरी ऑपरेटर को आप साई बाहर निकाल सकते हो। दिस विल बी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x d upon dx plus x square plus 1 or identity, and then you can write psi and you can equate a square to this one। ठीक है ना? सो यू कैन सी हाउ यू ऑपरेटर वर्क्स। आप सिंपल फंक्शन की तरह इसे यूज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या दिमाग में रखना है? फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को दिमाग में रखना है। ठीक है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू विल रिप्रेजेंट ऑपरेटर इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। किसी भी ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है? So let's try to go for representation of operator in a matrix form। So suppose I have any operator A। Suppose I have any operator A, and what I want to do, I want to write this operator in a matrix form। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स के लिए उतने बेसिस चाहिए होंगे आपको। Then only you can represent this thing। So suppose I am writing it in a basis of phi 1, phi 2, phi m, phi n। सपोज n क्रॉस n के बेसिस में लिख रहा है, m and n आर द नंबर, है ना, phi 1 phi 2 up to phi n। ठीक है? सो हाउ, सो दिस ऑपरेटर विल बी व्हाट, n क्रॉस n ऑपरेटर, n क्रॉस n मैट्रिक्स, है ना? एग्रीड? सो व्हाट विल बी द मैट्रिक्स एलिमेंट। सो मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा? सो मैट्रिक्स एलिमेंट a m n, क्या लिख रहे हैं? मैट्रिक्स एलिमेंट a m n is actually
phi m a phi n. Agreed? So this is bra. A is sandwich between the mth, जो पहले लिखा हुआ है उसका bra हो गया, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका क्या हो गया, kit हो गया. ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कितने टर्म निकालने पड़ेंगे, n, है ना, n स्क्वायर टर्म आपको, सॉरी n टर्म निकालने पड़ेंगे, है ना, n एलिमेंट होंगे तो आपको सारे टर्म निकालने पड़ेंगे. क्लियर है ये? ओके, सो नाउ, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको रूल पता होना चाहिए, हाउ a इज ऑपरेटिंग टू phi n. If you know this rule, then you can easily write in a matrix term. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं उसको देखते हैं. ठीक है, सपोज A will operate on phi n. Suppose A will operate on phi n and it will give you n square a naught phi n. कुछ ऐसा दे रहा है, वही वही वेक्टर दे रहा है लेकिन कुछ नंबर के साथ दे रहा है. ओके, एंड वेयर n इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3, तीन ही वैल्यू मिल रही है हमें. ओके, एंड व्हाट वी हैव बेसिकली also this relationship that phi m is delta nm. कैसा है ये, डेल्टा nm. ओके, नाउ अब हम यहां देखते हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द A एज अ मैट्रिक्स फॉर्म. एक मैट्रिक्स के रूप में कैसा दिखेगा. ओके, so how you will look like, so it will look like that A11, क्या लिखोगे जरा बताओ, phi 1 A phi 1. Okay, so A will operate on phi 1, what you will get, 1 square A naught, and this is number you can write anywhere, so that will, आप ऐसे लिख लो पहले, phi 1 1 A naught square phi 1, and you can write 1 A naught square phi 1 phi 1, and what is this value, 1, because I have this rule. अगर ये रूल नहीं रहता तो हम नहीं लिख पाते, है ना. So this is some rule, so this will be 1 A naught square. ठीक है, similarly if I am going to calculate A12, then what you will get, you will get phi 1 A phi 2. A will operate on phi 2, what you will get, phi 1 4 A naught square phi 2, और 4 A naught square को बाहर लेगा तो क्या होगा, phi 1 phi 2, and this value is 0. So ये एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें सारे ऑफ डायगोनल टर्म क्या हो जाएंगे, 0. आप यहां पर इजीली देख सकते हो, एक बार में ही कैलकुलेट कर सकते हो मैट्रिक्स एलिमेंट. सो इफ यू आर राइटिंग AMN, so this is phi m A phi n. Agreed? A will operate on phi n, what you will get, n square A naught. So you have phi m n square A naught phi n, you can take it outside, n A naught square phi m phi n. What is this value, डेल्टा mn. तो कब मिलेगा, जब m की वैल्यू n होगी तो. सो दिस वैल्यू इज नथिंग n a स्क्वायर a नॉट डेल्टा mn. सो यू हैव अब बेसिकली व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स. कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, सो यू हैव डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 a नॉट और 1 स्क्वायर a नॉट 0 0 0 4 a नॉट स्क्वायर 0 0 0 9 a naught square. So this is very trivial, very simple one. So a को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको बेसिस वेक्टर दिया हुआ है तो. उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में कैसा वो मैट्रिक्स दिख रहा है, ऑपरेटर दिख रहा है, आप वो बात कर रहे हो, है ना, जो आपको वेक्टर्स पता है अगर तो. ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं. क्लियर है ये सारे टूल्स हैं, इसको जितना ज्यादा हम रिफाइन करके रखेंगे बाद में हमें उतना आसानी होगा और हमारा टाइम उतना ज्यादा सेव होगा.
चलो, so let's go for this one. Suppose A will operate on phi n and it will give you n a naught phi n minus 1. कहां जा रहा है? n minus 1 पे जा रहा है. ठीक है? So you have to write this thing in a basis of, or in a basis of, let's say phi 1, phi 2, phi 3, और ऐसा करो phi 0, phi 1, phi 2 में लिखो. phi 0, phi 1, phi 2, और आपके साथ साथ ये भी दिया है A will operate on phi 0, this will give you 0. It is also given. ठीक है? A will operate on phi 0 will give you straight forward 0. हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस तरह हो सकता है, लेकिन 2 पर जाएगा तो वो 1 देगा, 1 पर जाएगा तो 0 देगा. सो आपको 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है. ठीक है? तो इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो देखो, उसके थ्रू करता है. व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट समथिंग. किसके बेसिस में लिखना है? phi 0, phi 1, phi 2, है ना? सो यू विल राइट phi 0 फर्स्ट, phi 1 फर्स्ट, phi 2 फर्स्ट, है ना? ऐसे लिख दिया. जिस ऑर्डर में आपने यहां लिखा है उसी ऑर्डर में यहां भी लिखा. phi 0, phi 1, phi 2. ओके, नाउ यहां पर A को ऑपरेट कराया. ओके, अब देखो ये एलिमेंट क्या है? phi 1 A phi naught, sorry, phi naught A, phi naught is this element. What is this element? Phi naught A phi 1. What is this element? Phi naught A phi 2. Okay, A phi naught phi naught क्या होगा? phi naught A phi naught क्या आएगा? A will operate on phi naught. What you will get? 0. इसका तो खेल ऐसे ही खत्म है. This will be 0. Clear है ये? Now, and it is also given that phi m phi n is delta mn. इसका मतलब क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में हम लिख रहे हैं. क्लियर है ये? चलो, A will operate on phi 1. What you will get? A will operate on phi 1. क्या मिलेगा? 1a naught और phi 0. Agreed or not? 1a naught and phi 0. Phi 0 and phi 0 is equal to what? 1. So this value is equal to what? A naught. Clear है ये? Okay. A will operate on phi 2. What you will get? 2a naught और ये क्या मिलेगा? phi 1, और phi 1 और phi 0 क्या मिलेगा? 0. ऑर्थोगोनल कंडीशन के कारण ये 0 होगा. दिस वैल्यू इज 0. ठीक है? A will operate on phi naught. फिर से phi 1 A phi naught, फिर से क्या हो जाएगा ये? 0. A phi 1 phi 1 A phi 1 क्या मिलेगा? नेक्स्ट वाला टर्म क्या मिलेगा? 0. Why 0? बिकॉज यहां पर phi 1 है और A को ऑपरेट करने के बाद क्या मिल रहा है? phi 0. सो दिस वैल्यू इज 0. यहां पर क्या 0 होगा? नो, यहां पर क्या हो जाएगा? 2a naught. A will operate on phi 2, that will give you 2a naught and phi 1, and phi 1 and phi 1 is equal to what? 1. So this value is equal to what? 2a naught. Agreed? इसमें बताओ क्या आएगा? कोई टर्म बचेगा? नो. ऑल टर्म पहला तो 0 ही हो गया. 2 0 से आ गया, 0 आ जाएगा. वो 2 के ऊपर ये भी 0 है. So this is upper triangular matrix kind of situation. अगर ये बेसिस है तो इस मैट्रिक्स को, इस रूल को फॉलो करने वाले मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है? देखेंगे इसका बहुत ही ज्यादा यूज आएगा और प्रैक्टिकली इसे हम समझने की कोशिश करेंगे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके. Now, it's a very important thing. Suppose I have a relationship that A, अब मैं हैट हटा रहा हूं तो आप
ऑपरेटर समझ लोगे, ठीक है। सो ए ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन phi, will give you, let's say, some psi. It is given, ठीक है। So if it is given, A will operate on phi. You have what? Some psi ket. Agreed? अब मेरा क्वेश्चन ये है, if I want to change phi bra to chi bra, sorry, phi bra to psi bra, A will operate on phi. It will give you what? Psi. And similarly, I just want to change it. Then what is going to happen? So then your column will change to row. Then this A will going to change as A dagger. What is A dagger? Hermitian conjugate. ठीक है? So what is A dagger? A dagger is nothing. First you will transpose A and you can just make a complex conjugate. ठीक है? तो आप क्या करोगे? रो को कॉलम में ट्रांसपोज करोगे और हर एक एलिमेंट को क्या कर दोगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सो दिस इज अ डैगर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इफ यू हैव ए डैगर इज इक्वल टू ए, देन दिस इज नोन एज व्हाट? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर सम प्रॉपर्टी ऑफ डैगर। डैगर की प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लियर है ये? सो वी हैव A plus B dagger is equal to what? A dagger plus B dagger. Very obvious, very trivial. ठीक है? Now A dagger to the power dagger is A, है ना? Obviously ट्रांसपोज करोगे और फिर से कॉन्जुगेट लोगे, फिर से ट्रांसपोज करोगे, फिर से कॉन्जुगेट लोगे, विल गेट द सेम थिंग. So this will be A. And suppose lambda is some scalar number and you are taking dagger, then what you will get? Lambda star, if lambda is some complex number, then you will get what? Lambda star A dagger. ठीक है? Lambda star A dagger. Okay. Now it's a very important thing. A B whole dagger is equal to what? B dagger A dagger. Let us try to prove this thing. इसको प्रूफ करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को आप और भी ब्यूटीफुली समझ पाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट correspondence between kit and bra. How you will do this correspondence operation, ठीक है। नाउ देखो क्या हो रहा है, इसको प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सपोज आई हैव ए B phi. AB will operate on phi. I have some psi. Suppose I have AB will operate on phi and you have what? Some psi. AB phi पर ऑपरेट कर रहा है, आपको क्या मिल रहा है? कोई एक psi मिल रहा है. Okay? What is the meaning of that? B will operate first and then you will get psi. है ना? Now अगर मैं इसी के correspondence ब्रा में लिखूं तो क्या लिखूंगा? फाई ब्रा के ऊपर क्या ऑपरेट होना चाहिए? ए बी का होल डैगर, ये ऑपरेट होना चाहिए। एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट साई. यस, ए बी का होल डैगर ऑपरेट होना चाहिए एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट साई. नाउ लुक एट हियर. ए बी फाई पर कैसे ऑपरेट होगा? बी विल ऑपरेट ऑन फाई एंड गिव यू सम बफर, सम नया किट देगा. लेट्स से B will operate on phi. I have some chi. है ना? तभी तो है, रूल तो ऐसा ही हो रहा है. मीन्स अगर मैं इसको ब्रा के टर्म में लिखता हूं, दैट मीन्स B के ऊपर कौन ऑपरेट कर रहा है? सॉरी, फाई के ऊपर कौन ऑपरेट कर रहा है? B dagger and it will give you some chi. क्लियर है ये? B dagger फाई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ काई मिल रहा है. ओके,
एंड अब एक B5 के ऊपर ऑपरेट करेगा, मींस A will operate indirectly on chi. So A will operate on B5. That means A will actually operate on chi. A will actually operate on chi, and A will operate on B5 will give you what? Psi. So A will operate on chi, give you what? Psi. क्लियर है ये? ओके. सो अगर मैं इसका ब्रा लिखूं तो क्या लिखूंगा? chi A dagger is equal to psi. ठीक है? And from this equation, I can write chi bra as B dagger phi. लिख सकते हैं? यहां से chi bra को क्या लिख सकते हैं? B dagger phi. Everyone is comfortable? So this value is equal to phi B dagger A dagger chi. And now we can compare these two things. इसे और इसे आप क्या कर रहे हो? Compare कर रहे हो. So when you are going to compare it, what you will get? You will get AB whole dagger is equal to what? B dagger A dagger. Clear है ये? These are basically AB whole dagger is equal to B dagger A dagger. Agreed? So this is your. So similarly, if I will write ABC whole dagger, how you will write it? Obviously, you can write C dagger, B dagger, A dagger. ठीक है? So this is some basic property of operators. Operators की एक और property हमें समझना है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है? सो लेट्स गो फॉर बेसिक ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. क्लियर है? देन कल हम लोग कुछ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? मेनली कम्यूटेटर्स एंड ऑल दिस थिंग और बेसिक चीजें देखने की कोशिश करेंगे. ओके. सपोज यू हैव एनी ऑपरेटर ए, कोई भी एक ऑपरेटर ए है, उसे आपने किसी भी किट पे ऑपरेट किया, एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट किट. ठीक है? एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज सम नंबर एंड दिस phi सम नंबर. सो ए phi पर ऑपरेट किया, उसी के डायरेक्शन में आपको एक किट मिल रहा है. दैट मीन्स यू आर गेटिंग व्हाट? सम पैरेलल वेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग. ये क्या होगा? लैम्डा फाई इज ऑलवेज पैरेलल टू फाई. ठीक है? तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं उसे आप क्या कहते हो? आइगन वैल्यू. सो दिस लैम्डा इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट? आइगन वैल्यू. एंड दिस फाई इज व्हाट? आइगन वेक्टर. ठीक है? क्लियर है ये? दिस इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. सो यू कैन हैव अ प्रोपोर्शनलिटी वेक्टर. एक ऑपरेट किया, वही मिल गया आपको. इन जनरल डिफरेंट मिल जाता है. जब भी वो मिल जाएगा तो आप आइगन वेक्टर इक्वेशन दोगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं dx ऑपरेटर को डिफाइन करता हूं d अपॉन dx, ठीक है, और इसे मैं ऑपरेट करता हूं साइन kx के ऊपर, आपको क्या मिल रहा है? k cos kx. दैट विल गिव k cos kx. क्या मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इक्वेशन कहा? नो, इट इज नॉट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इक्वेशन. ये आपको डिफरेंट किट दे दे रहा है ना? dx जो है वो साइन kx पर ऑपरेट करके आपको डिफरेंट किट दे रहा है. यस? लेकिन यहीं पर अगर मैं dx
e टू द पावर अल्फा x के ऊपर इसे ऑपरेट करता हूं, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अल्फा e to the power alpha x. So what you will get? This dx is proportional to alpha x. Same function के proportional हो रहा है. Agreed? So and obviously this alpha is some constant. So you can have what? Eigenvalue. So alpha is what? Eigenvalue, and e to the power alpha is identified as eigenvector. But cos sin kx is not identified as eigenvectors. तो जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन हर एक ऑपरेटर के लिए आइगन वेक्टर इक्वेशन दो. इट विल डिपेंड्स ऑन दिस रिलेशन की ये रिलेशन क्या है. एग्रीड? सो इन जनरल, और ऑब्वियसली अगर आपका एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आपको कितने आइगन वेक्टर्स चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए, n चाहिए. ठीक है. सो अभी हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बात करेंगे कंप्लीटनेस रिलेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इन सब के बारे में बात करेंगे. बट अभी हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन नेचर. कैसा निकालेंगे हम? लीनियरली इंडिपेंडेंट इन नेचर. ठीक है, ताकि उसका हम आगे जाकर यूज कर सके. सो यहां पर इफ लैम्डा इज नॉन रिपीटेड, if lambda is non repeated then this is known as what? Non degenerate. ये सारे आपने पढ़ रखा है ना? if lambda is repeated, if lambda is repeated then this is what? Degenerate. ठीक है, degenerate. तो नॉन डिजेनरेट के लिए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होगी हमारा? डीजेनरेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर अ सिंपल आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स इक्वेशन निकालते हैं. उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. आपने मैट्रिसेस तो हो गया है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में. ठीक है. सो कल की क्लास में मैं पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर और कंप्लीटनेस रिलेशन बताऊंगा. देन वी विल सी कि एक ही ऑपरेटर्स के डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स निकल सकता है. ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, और वो कैसे सेट होंगे? जो ऑर्थोनॉर्मल इन बेसिस होंगे. ठीक है, अगर डिजेनरेसी आती है तो. अगर नॉन डिजेनरेसी आती है देन यू विल हैव ओनली वन सेट एंड दैट इज यूनिक सेट. वो हम देखने की कोशिश करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली उसका क्या यूज है वो हम समझेंगे. सो कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. एंड वंस ऑपरेटर्स, कल कम्यूटेटर्स फर्स्ट करेंगे, देन वी विल गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. ठीक है. सो ये देखेंगे, है ना. एंड देन वी विल गो फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो एक पार्ट खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो इस वीक में पोस्टुलेट्स हम फिनिश करेंगे. ठीक है. सो एक बार पोस्टुलेट्स फिनिश हो जाएगा देन एवरीथिंग इज केक वॉक फॉर यू, डोंट वरी. फिर आपको बार बार वही चीज करते रहना है और काम चलते रहना है. ठीक है. सो अभी तो कुछ नहीं करना है आपको, जो करवाया उसी को रिवाइज करो, और स्टडी मटेरियल जो दिया हुआ है वो आप देखने की कोशिश करो. दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल स्टडी मटेरियल. एक एक चीज उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि आपको जानने की जरूरत है. सो आप चाहो तो सिर्फ उसी स्टडी मटेरियल से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि वो मैंने आर शंकर, ग्रिफिथ, कोएंतनोजी, जेटली, इन सबको फोकस करके आपके एग्जाम के लायक जो भी है उसको इंक्लूड किया है, और वो मेरे क्लास का हू बहू रिप्लिका है. ठीक है. सो आपका नोट्स जो बनेगा उससे ज्यादा उसके अंदर चीजें दी हुई है, तो किसी बुक में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन रीड इट. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे.